हेलो एवरीवन। सो फेसबुक लाइव थ्रू पेन ऑफ धर्मा। कल आप सबको टॉपिक पता ही होगा, मैंने एक रिमाइंडर सेट करा था। टॉपिक इज़ ऑन मदर टेरेसा, द डार्क सीक्रेट्स अपाउंड ऑन द मिशन ऑफ चैरिटी, जो मदर टेरेसा का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट शी रैन एंड बिकॉज ऑफ विच शी इज़ सो मच वेल नोन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मिशन ऑफ चैरिटी। सो मैंने मदर टेरेसा को, मतलब वाई आई चोज टू डिस्कस अबाउट मदर टेरेसा इज बिकॉज ऑन 26 August was her birthday, and I could see all over the social media that it was trending. She was a very noble soul, and how she actually helped humanity and everything. All over the internet was trending. I'll be speaking on bilingual, English and Hindi both mixed, because we have people from South also, people from across the country who follows our page. So I'll be speaking both the language, Hindi and English simultaneously. So Mother Teresa, मतलब छोटे से जो इमेज बना है हमारे दिमाग में मदर टेरेसा के प्रति, वो ये है कि शी इज़ अ नोबल सोल। ठीक है, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्मॉल, वेन एवर देवर, इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव स्टडीड इन क्रिश्चियन स्कूल्स, आपने 100% देखा होगा वेन एवर देर वॉज एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा और इवन और ऑर्गेनाइजेशन, देर वॉज टू बी अ वेरी मैसिव बिग फेस्टिवल। वहाँ पे पूरा मदर टेरेसा का बायोग्राफी दिखाया जाता था, हर ग्लोरीज, हाउ शी हेल्प द पुअर पीपल इन द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा, इन अफ्रीकन कंट्रीज, हाउ शी ट्राई टू अपलिफ्ट द पुअर पीपल, हाउ शी डेल्ट विद द पीपल ऑफ पेशेंस और लेप्रेसी। मतलब टाइम ऐसा हो गया था कि मसीह ऑफ ह्यूमैनिटी, सो मदर टेरेसा वॉज रिफर्ड एज मसीह ऑफ ह्यूमैनिटी। इवन एट दैट टाइम यू डिस्कस अमंग टीचर्स एंड एवरीथिंग, आपको सब लोग यही बोलते थे कि द पर्सन, she was kind of shown like she incarnated into this world to help the poor, to help the distorted people, to help the people who are into poverty, who are diseased. So Mother Teresa was the face all across the world. Mother Teresa का glories गाया जाता था in schools also, in academics also. She was the face of humanity. So what people know of Mother Teresa is that she was a noble soul who took care of the sick, the disabled and the homeless. And in 2016 Pope of Vatican, ठीक है, उन्होंने मदर टेरेसा को सेंट का उपाधि भी दे दिया था, although she did not deserve it. During the discussion I'll discuss why she does not deserve being a saint, even not should not be called a mother also. So why Mother Teresa is not what the world has been projecting it. अभी although the mission of charity, उसके काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आ रही है धीरे धीरे करके. So maybe during down the year, 10 years down the line or 5 years down the line, it will be completely out of the picture. But still, the goodwill image of Mother Teresa is very much prevalent all across the world. So I'll first let you know what is Mission of Charity. So Mission of Charity was established in 1950, and it has over 500 missions all across the world. It is running across 130 countries currently, and the operation has been continuously expanding. So Mission Charity in short, or Mother Teresa, मतलब एक सिंगल लाइन में बोलूँगा तो इट इज़ द बेस्ट PR कैंपेन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज बाय द चर्च। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक कंपनी है, मैं आपको एग्जांपल दूँगा हाउ वैटिकन एंड हाउ मदर टेरेसा's मिशन ऑफ चैरिटी वर्क्स, एंड हाउ यूज्ड टू वर्क एंड हाउ इट इज़ स्टिल वर्किंग, ऑल्दो काफ़ी उनका पावर एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम ड्यूरिंग 90s and 2000 it has been reduced, but still they are very much powerful as compared to before. It is not so, but still. So Mother Teresa का जो मिशन ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा एंड द वैटिकन, हाउ दे वर्क इज, एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, कोको कोला। ओके, सो कोको कोला इज़ अ वेरी ह्यूज मल्टीनेशनल। अब फिर कोको कोला के अंदर एक साइमल्टेनियस देयर आर स्मॉल ब्रांड्स, ठीक है, लाइक मिनट मेड इज देयर, स्प्राइट इज देयर, मेनी small brands, so the Fanta is there, Gatorade is there, so these are the small brands. So similarly Vatican का क्या होता है कि Vatican also has small brands spread all across the world, ठीक है। तो Vatican का भी similarly ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जोशा प्रोजेक्ट है, मिशन ऑफ चैरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट like successful project of Christian missionaries. Second is Joshua project. There are many projects running all across the world, especially in African countries, the war-torn countries, and South India and Punjab, and like most part of this nation of our country. So
हाँ, तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि कोको कोला का। सो कोको कोला की जैसे छोटी छोटी सब्सिडरीज है, ठीक है, वो आर हैव कैप्चर्ड लॉट ऑफ मार्केट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट। तो उनमें से स्प्राइट, एक एग्जांपल, स्प्राइट इज डूइंग वेरी वेल इन द मार्केट, ठीक है, एंड पीपल प्रेफर ड्रिंकिंग स्प्राइट। सो मतलब देर इज़ अ कंपनी कॉल कोको कोला एंड उसका एक सब्सिडरी यूनिट है, वो है स्प्राइट। तो स्प्राइट इज़ वाइडली यूज अमंग कस्टमर्स, इट इज़ वेरी मच liked by customers all across the world. अब क्या होता है कि although people find that Sprite is good in taste and everything, पर क्या होता है उसका end product है, उसका end product is like excess sugar, ठीक, carbonated drinks which is an artificial sweetener which is ultimately bad for your health. So similarly चर्च भी ऐसे ही चल रहा है जैसे कोको कोला है। कोको कोला इज टोटली बिजनेस मॉडल बिकॉज इज अ कॉर्पोरेट एंड वैसे ही उनका एक सब्सिडी है स्प्राइट विच हैज कैप्चर्ड ह्यूज सेगमेंट ऑफ मार्केट। सो मिशन ऑफ चैरिटी ने भी ऐसे ही करा, वैटिकन का सपोर्ट था, तो द मिशन ऑफ चैरिटी दे हैव कैप्चर्ड अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ मार्केट इन सोशल वर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ मतलब लोग बोलते हैं कि मदर टेरेसा मतलब जब भी इवन यू ऑल्सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, आप सब अपने दोस्तों से डिस्कस करोगे, मित्रों से डिस्कस करोगे, इवन यू फैमिली मेम्बर्स वो आर नॉट वेल रेड और जिनको ज़्यादा पता नहीं है वट वॉज द डार्क सीक्रेट ऑफ बिहाइंड दिस मिशन ऑफ चैरिटी एंड मदर टेरेसा, तो उन लोगों को लिटरली यही लगेगा कि मदर टेरेसा वॉज अ नोबल लेडी who just came to India and chose Kolkata. Why? Because Kolkata was the most suffered place on this planet, on this country. ठीक है, so that's why she came to Kolkata. So Kolkata, yes, I agree. Kolkata में plague था, leprosy था, there was lot of problem in Kolkata. ठीक है, so she chose Kolkata to deliver patients or the sufferings. तो लोगों को लगता है she just came as a social worker. और बोलते people also say that ठीक है, Christianity was her faith, but she did not involve Christianity while serving the patient. मतलब Christianity was her personal practice and social work was something which was she was genuinely doing. ठीक है, तो I'll quote a statement. I was doing some research, I came across a statement. So it is the research which says Mother Teresa's primary purpose in life was not to provide care to the sick and destitute, but to spread the word of Christ. This is a research article. ठीक है, so I'll share you the links. I have my Telegram group. I'll share you the links in the comment after the broadcast end. So I'll let you know from where I've picked up all these sources where I'm quoting. There's a famous atheist, Christopher Hitchens, although I do not agree on his philosophy of existence of God. But when I saw his documentary, Hell's Angel or something, on Mother Teresa, it was very well researched documentary. उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि हाउ मदर टेरेसा मिशन ऑफ चैरिटी exploited patients and how her main ultimate aim was to promote Christianity on the garb of social service. So secondly, one more thing which proves that Mother Teresa was there to promote Christianity and to spread her missionary works and not to do social service is the Mother Teresa का headquarters था, the place from where she used to command, the place from she used to control all the activities in India and also in many parts of the country. Kolkata was her main center till she was alive. ठीक है, so Mother Teresa ने एक placard टांगा था अपने डोर के बाद and which said, tell them we are not here for work, we are here for Jesus. Okay, tell them we are not here for work, we are here for Jesus. We are religious above all else. We are not social workers. You please hear this point properly. We are not social workers, not teachers, not doctors. We are nuns. Nuns, you know who are nuns, okay? Mother Teresa Atterbury believed that suffering was a gift from God. So this was another statement. She used verses from Bible and quoted that suffering was a gift from God. So it is good people are suffering. I'll further discuss in detail about this. So आपने जैसे मैंने अभी स्टेटमेंट कोट करा तो मदर टेरेसा ने प्रॉपर प्ले कार्ड डाला था विच क्लियरली अनाउंस, उसमें बोला हुआ था कि वी आर नॉट सोशल वर्कर्स, नॉट डू वी आर टीचर्स, ठीक है, नॉट डू वी आर हेयर फॉर डूइंग सम सोशल सर्विस टू हेल्प द पुअर पीपल, वी आर जस्ट हेयर फॉर सोशल, वी आर जस्ट हेयर फॉर मिशनरी एक्टिविटीज. दिस वाज क्लियर कट व्हाट मदर टेरेसा व्हाट मदर टेरेसा ब्रॉडकास्टेड द मैसेज. ठीक है, ऑल्दो फिर भी लोगों को लगता था नो शी वॉज जस्ट देयर फॉर सोशल वर्क एंड उनका प्रैक्टिस, हर प्रैक्टिस वॉज क्रिश्चियनिटी वॉज हर प्राइवेट प्रैक्टिस ऑन एक्सेट्रा. नाउ वील मूव ऑफ टू नेक्स्ट थिंग.
Now I'll be discussing few themes while during this session, from where the mission of charity used to receive the funding, and how much part of the funding, how they used to support the Vatican Church, the mission of charity. Third will be how the patients were treated in the mission of charity, the hospitals run by mission of charity, ठीक है, the ill treatment of patients. Then जो पेशेंट्स मर जाते थे, जिनका देहांत हो जाता था, उनकी बॉडी के साथ कैसे डील किया जाता था, हाउ दे वर हैंडल्ड, ठीक है, controversial statements of the Mother Teresa. These are the 4 to 5 themes I'll be discussing during this live session. So first I'll come to the mission of charity, ठीक है. So अभी क्या होता है कि जैसे कोई भी whenever you are starting a something, whenever you're doing a social service, so one of the principle is you take donation from people who have good intentions. मतलब एक तो होता है कि आप ऐसे लोगों से डोनेशन लो, you can take donation from the terrorists, you can take donation from corrupt politician, you can take donations from fraud businessmen, you can take donation from different kind of people who are in front of the society referred as criminals. So that donation should not be accepted. Why? Because in social work it should be completely pure. मतलब आप इन लोगों से डोनेशन ले रहे हो तो वही बात होगा कि उनका पैसा को आप वाइट कर रहे हो, यू आर like painting you're whitewashing their black image. This is as it is accepting donations from such people. But still Mother Teresa went forward and accepted donation from people. I'll be listing out the names. काफ़ी सारे लोग थे तो मैंने कुछ selected लोगों का, the famous people, I have selected their names. So Teresa accepted funds from Francois Duvalier. He was the president of Haiti from 1957 to 1971. And ठीक है, president of Haiti, that is a different thing. There is nothing wrong in being a president of Haiti. So this guy, he literally massacred 30,000 Haitians during his tenure. Mother Teresa was completely convinced that this guy is a mass murderer. He did genocide of so many Haitians. Still, she approached him, she met him, she accepted award from this guy named Francois Duvalier and accepted lot of donation. जनरली क्या होता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ करी होती है इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, दे आर इनफेमस, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करते हैं, ठीक है, वो कैन वाइट वॉश द इमेज, वो कैन मेक द इमेज क्लीन. जैसे हवाला स्कैम एक तरह से हो गया, और बहुत सारे NGOs, like illegal NGOs are formed to turn the black money into white money. So similarly Mother Teresa approached these people, and these people like use Mother Teresa just to show their image as good, ठीक है. So obviously होता है हाइटियन प्रेसिडेंट अगर मदर टेरेसा को डोनेट कर रहा है तो जो लोग को थोड़ा बहुत डाउट होगा कि हाँ उसने मास जेनोसाइड करा होगा वर्ल्ड में, पर व्हेन दे सॉ कि ही सपोर्टिंग मदर टेरेसा फॉर हर नोबल वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उनका डाउट क्लियर हो गया कि हाँ दिस द हाइटियन प्रेसिडेंट, ही हैज़ बीन लेबल्ड एज क्रिमिनल बाय अपोजिशन और समथिंग, तो उसका इमेज क्लीन हो जाएगा. So this is how these people used to use. Second is Robert Maxwell. So Robert Maxwell is another American person जिसने 450 million US dollar he siphoned off. Siphoned off means उसने अपनी कंपनी से $450 million US dollar का फंड्स को हटा दिया था पेंशन का. This guy was one of the biggest person, was one of the most infamous person in the American history for financial scandal. ठीक है, अब जो व्यक्ति $450 million फंड्स निकाल रहा है पेंशन फंड्स के, आप सोचो तो पेंशन फंड्स का पैसा के साथ फ्रॉड करना कितना मतलब बुरा है, ठीक है. और मदर टेरेसा ने ऐसे व्यक्ति को भी अप्रोच करा, एंड शी अगेन दीज पीपल यूज हर एज टू क्लीन देयर इमेज, ठीक है. एंड मदर टेरेसा वेंट फॉरवर्ड द मिशन ऑफ चैरिटी, दे वेंट फॉरवर्ड एंड एक्सेप्टेड डोनेशन फ्रॉम देम ऑल्सो, फ्रॉम दीज पीपल ऑल्सो. देन थर्ड पर्सन इज चार्ल्स कीटिंग. And Charles Keating was an American banker, and this guy was very much famous. Americans know him very well during those days, 90s के decade में, 90s के era में, 2000 के era में, he was very much famous, 80s to 90s के बीच में. So Charles Keating, a big fraudster, ठीक है, बहुत सारे रैकेट रन करे इस व्यक्ति ने, and he was one of the most infamous person in the history of America in financial scandal. आप चार्ल्स कीटिंग का नाम गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारे स्कैंडल खुलते हुए आ जाएंगे. ही लिटरली लूटेड लॉट ऑफ अमेरिकन्स, ही लिटरली
made lot of Americans go bankrupt. तो ऐसे व्यक्ति से भी मदर टेरेसा approached this person, her mission of charity, and they took donation from them. The mission of charity and Mother Teresa, they took donation from them to use for their own purpose. And she used to also travel, despite of knowing that this person is already convicted. This person is already a criminal, a fraudster. He's been running so many rackets all across the country. फिर भी लोग आगे आके, मदर टेरेसा ने आगे आके उसे डोनेशन एक्सेप्ट करा और उसके प्राइवेट जेट में जाती थी. Whenever she used to go to America, वो चार्ल्स कीटिंग के प्राइवेट जेट्स में जाती थी अलग अलग जगह में फंड रेजिंग कैंपेन्स करने के लिए, डोनेशन रेज करने के लिए. लास्ट इज प्रिंसेस डायना ऑल्सो सपोर्टेड मदर टेरेसा. एंड हाउ that money, so there is a report, I'll be putting on the link in the comment section. There is a report which says that Mother Teresa used a lady who used to handle Mother Teresa's account in New York. She said that Mother Teresa के account में, in one of her accounts of Mission of Charity, $50 million was there together in a single account. मतलब आप सोच सकते हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में $50 million रखा हुआ है. मतलब दिस वॉज सो मच शॉकिंग. बट एक जगह इकट्ठा पैसा कैसे हो सकता है? मतलब द रोल ऑफ सोशल वर्क, सोशल पीपल आर, वेन एवर यू आर रिसीविंग द फंड शुड बी यूटिलाइज इन द एक्टिविटीज यू आर क्रिएटेड फॉर. बट दैट फंड वॉज kept as a contingency fund or fund for something which was not as per the job role of Mission of Charity. And how Mother Teresa Mission of Charity used to support the church. So there's a magazine, there was an investigation done by a magazine called Stern, and Stern is a German weekly magazine. ठीक है, तो Stern says the Mission of Charity सिर्फ 7% जो पैसा डोनेशन से आता था, सपोज $100 million अगर रिसीव हो रहा है मिशन ऑफ चैरिटी को, तो 7% दैट मीन्स $7 million विल बी यूज फॉर द पर्पस विच दे आर फॉर्म फॉर. उसी पर्पज से यूज़ की, जैसे सोशल वर्क इन सब के लिए जिसके लिए ओरिजिनली मिशन ऑफ चैरिटी फॉर्म हुआ था, उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा. बाकी पूरा जो पैसा है दैट विल गो टू वैटिकन. यू कैन इमेजिन 93% ऑफ द मनी, जैसे आई गेव यू एग्जाम्पल कि $100 million में से $7 million यूज़ होगा सोशल वर्क के लिए. ठीक है, वो भी सोशल वर्क का बहुत डिग्रेडेशन था. इट वॉज ऑल्सो अ पॉवर्टी रिफ्लेक्शन सोशल वर्क. मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा. और जो $93 million था दैट वॉज यूज्ड फॉर supporting missionary activities all across the globe and used to go to Vatican also. So this is how the funds were used of Mission of Charity. And this is an investigation done by Stern, weekly German-based news magazine. You guys can inbox Pen of Dharma. I'll share you many links. You can also join the the Telegram link, Telegram group of us, where I'll be posting the link tomorrow. And now financial transparency. So एक चीज़ बहुत important है basically, कि जब भी कोई आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज यूजुअली फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी. वेदर इट इज़ अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, वेदर इट इज़ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर इट इज़, ABC, यू हैव टू शो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी. और कैसे? आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाउ मच फंड्स यू गॉट, हाउ मच फंड्स यू इन्वेस्टेड, वेयर, फ्रॉम whom you got, the sources you got funds from, were they legally, were they lawful people, were they not like criminally committed and everything. आपकी ऑडिट बुक्स को हर साल गवर्नमेंट चेक करे प्रॉपरली. यू शुड सबमिट योर इनकम टैक्स प्रॉपरली. यू शुड गेट प्रॉपर, यू शुड बी properly listed under income tax authorities and everything. These were all the these are all the categories which fulfill the financial transparency. आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रामाकृष्ण मिशन है, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग है, इस्कॉन है, many of the religious organizations, even RSS also, like the RSS is a social organization. So जब भी इन लोगों का फंक्शन होता है, so क्लियर कट रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास. द इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैव क्लियर कट रिकॉर्ड कि कितना पैसा उनको कहाँ से आया है, कहाँ पे कौन सा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं. तो ये सब का क्लियरली एक पूरा ट्रांसफर रिकॉर्ड होता है. वेन एवर इनकम टैक्स अथॉरिटीज वांट, इवन यू गाइस कैन पुट RTA ऑल्सो ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशन, सी where they are receiving funds from and where their funds are being utilized and for which activities. आपको RTA से सब कुछ पता लग सकता है. पर मदर टेरेसा के केस में ऐसा नहीं था. सिर्फ एक जगह थी, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे मदर टेरेसा के मिशन ऑफ चैरिटी का बुक मेंटेन होता था. सो
हाँ, so UK was the only country where mother of missionary of charity, the large one of the largest social organization in the world, जिसका बुक मेंटेन होता था. और बाकी कोई भी कंट्री में, इवन इन इंडिया में इट वाज कम्प्लीटली गॉन केस. इंडिया में तो बिल्कुल ही बुक मेंटेन नहीं होता था. द बुक्स वर मेंटेन्ड ऑन अ रफ नोटबुक. जैसे आप लाइक यू आर सॉल्विंग सम मैथ्स प्रॉब्लम एंड व्हेन योर सेशन इज, व्हेन योर स्टडीज आर ओवर, व्हेन योर दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर इज ओवर, आप उसको फाड़ फूड़ के फेंक देते. यू डू नॉट वरी, यू डू नॉट केयर अबाउट इट. सिमिलरली ऐसे इस तरीके से रफ नोटबुक मेंटेन होती थी मदर टेरेसा के मिशन ऑफ चैरिटी का. ठीक है, वो जहाँ पे अपने लिए दे यूज्ड टू राइट फॉर देयर ओन, फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ फॉर देयर ओन हेल्प. ठीक है, वो अपनी एक्टिविटीज़ का ट्रैक रखते थे जिससे उनको पता लगे कौन कितना फंड कहाँ से आया और कहाँ यूज़ हुए. नॉट फॉर द गवर्नमेंट पीपल, नाइदर गवर्नमेंट यूज्ड टू बॉदर. तो आप सोच सकते हो कि मतलब वैटिकन कितना पावरफुल था कि इन लोगों को मतलब अपना अकाउंट्स बुक मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ता था. यहाँ तक कि किसी ने क्वेश्चन रेज करा, इतने साल से इनका एक्टिविटी चल रहा है इंडिया में. ठीक है, और अभी तक किसी ने नो वन रेज क्वेश्चन टू देम कि आपका पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, वेयर आर योर अकाउंट्स बुक्स एंड एवरीथिंग. कुछ ही साल पहले जब उनका ऑर्गन ट्रांसफर एंड बेबी सेलिंग वाला रैकेट बाहर आया था, तब जाके थोड़ा स्क्रूटिनी स्टार्ट हुआ था. तब जाके लोगों ने, अथॉरिटीज़ ने थोड़ा फॉलोअप स्टार्ट करा. पर उसके पहले इट वॉज कम्प्लीटली खाली, मतलब कुछ पता ही नहीं था लोगों को पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ यूटिलाइज हो रहा है. तो दिस वॉज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ऑफ हर ऑर्गेनाइजेशन मदर मिशन ऑफ चैरिटी. नाउ कम्स द मेन पॉइंट. अब जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मदर टेरेसा का पर्पस है सोशल वर्क. ठीक है, कहाँ से उनको फंड आता था उनकी ऑर्गेनाइजेशन को. मैंने आपको उन लोगों के भी नाम बताए. ठीक है, चार्ल्स कीटिंग हो गया, एंड द फ्रैंकियस डुविलियर, द हाइथियन प्रेसिडेंट who did massacre 30,000, he killed 30,000 हाइथियंस. ऐसे लोगों से फंड आता था. पहली बात, एक तो फंड इन लोगों से ले रही थी वो आर कन्विक्टेड, वो आर ऑलरेडी क्रिमिनल एज गुड एज टेररिस्ट. सेकेंड, जो फंड आता था सिर्फ उसका 7% वो सोशल एक्टिविटी में यूज़ करती थी. 93% पैसा वेटिकन को जाता था और मिशनरी एक्टिविटी स्प्रेड करने के लिए वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब वो यूज़ होता था. अब जो 7% पैसा वो इन्वेस्ट कर रही है सोशल एक्टिविटीज़ में, वो पैसा भी सही से यूज़ नहीं हो पाता था. अब देखिए आप कि जो मिशन ऑफ चैरिटी का हॉस्पिटल है कोलकाता में, उसकी क्या कंडीशन थी. नॉट ओनली कोलकाता, many of the branches they have. So I have some of the testimonies of people who used to work as a volunteer or as a nurse or as a nun in mission of charity. Later they realized these people genuinely came to serve the people, but when they saw such a pathetic condition of the patients out there, they could not tolerate it and they have to leave. Obviously बात है, लोग upfront expose नहीं कर सकते थे because you know how powerful Vatican is and can do anything to a person. ठीक है, so no one tried to mess up with the Vatican Church, no one tried to mess up with Mother Teresa and her mission of charity. So they quietly left, but later on they tried to expose them when they saw a good opportunities there to expose these people. So टेरेसा के हॉस्पिटल को बोला हाउसेस ऑफ डाइंग्स बोला जाता था. वाई? बिकॉज मदर टेरेसा का क्या काम था, शी यूज टू, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, फोटोज भी देखी होगी, मदर टेरेसा यूज टू टेक अ स्ट्रॉल अराउंड स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, और वो लोगों को मिलती थी स्ट्रीट्स में. एंड शी यूज टू कॉल ऑफ हर सेक्रेटरी एंड शी यूज टू से कि चलो इन सबको हमारे हॉस्पिटल में लाया जाए, इनका हम केयर करेंगे. प्योर पब्लिसिटी, PR स्टंट वॉज देयर बाय मिशन ऑफ चैरिटी. और हॉस्पिटल के अंदर क्या होता था वो किसी को नहीं पता था. थोड़ा बहुत प्लांटेड चैनल्स आते थे जो रिकॉर्डिंग करते थे प्रॉपर्ली, BBC एंड एवरीथिंग, वो सब आते थे, प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग करते थे ड्यूरिंग द मूवमेंट, जहाँ पे बहुत अच्छे से टेक केयर किया जा रहा है. मदर टेरेसा बीइंग सीइंग, कैचिंग, लाइक होल्डिंग अ बेबी very compassionately, dealing with patient very compassionately, giving a very sweet smile. उस टाइम में रिकॉर्डिंग करे जाके या फुटेज बनाया जाके पब्लिश किया जाता था. दिस इज हाउ PR इज डन, टेकिंग आउट द बेस्ट क्लिप, एंड इवन दैट बेस्ट क्लिप इज जस्ट 1%, टेकिंग आउट दैट पार्ट एंड प्रमोटिंग इट, एंड बाकी को रिजेक्ट कर देना. दिस इज हाउ PR स्टंट इज बीइंग रन. सो अब मदर टेरेसा क्या कहती है, ऐसे लोगों को अपने हॉस्पिटल में लाती थी. और फिर अब सपोज कोई व्यक्ति है जो एकदम ऐसी कंडीशन में, वो इज़ नॉट वो कैनॉट थिंक ऑफ एनीथिंग अदर देन सर्वाइविंग. मतलब वो जिंदा बच गया उसके लिए बहुत है. सो ही कैनॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कि उसका रिलीजन क्या है, वो कौन से देश का, उसका नाम क्या है, बस वो जिंदा बच जाए वो उसके लिए बहुत है.
तो मदर टेरेसा मिशन ऑफ चैरिटी यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ सच पीपल, वो इन लोगों का एडवांटेज लेती थी और उनको बैप्टाइज करती थी. एंड व्हाट इज बैप्टाइज? बैप्टाइज इज स्प्रिंकलिंग ऑफ होली वाटर ऑन योर फोरहेड. और कभी कभी क्या होता है, बैप्टाइज में भी बच्चे को पानी के अंदर डाला जाता है. एंड वाइल डूइंग दिस, जब आप में वो होली वाटर का स्प्रिंकल हो गया, उसके बाद आपका बैप्टाइज होता है, यू आर अ क्रिश्चियन. ठीक है, यू आर ऑफिशियली अ क्रिश्चियन एज पर द क्रिश्चियन रूल्स, एज पर द बाइबल. ठीक है, सो एज पर द मिशनरीज यू आर क्रिश्चियन. तो ऐसे लोगों को सोचो जो लोग डेथ बेड में लेटा हुआ है, जिसके पास जान ही नहीं है, एकदम लेप्री से सड़ रहा है बेचारा, उसको आगे सबसे पहली चीज़ ये करते थे कि लेटा हुआ है, वो उसको बैप्टाइज करते थे एंड बोलते थे नाउ ऑफिशियली दिस सो एंड सो पर्सन इज अ क्रिश्चियन. दिस इज हाउ दे यूज्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ वीक एंड डिजीज एंड डेस्टिट्यूट पर्सन एंड यूज्ड टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी. इसलिए क्रिश्चियनिटी इतना वाइडली स्प्रेड हो गया था ड्यूरिंग द वर्क ऑफ मिशन ऑफ चैरिटी इन इंडिया. नाउ there is an experience of a volunteer who worked at a house of dying. House of dying एक्चुअल नाम नहीं था, वो लोगों ने बोला गया क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पे मर रहे थे, इतने सारे जो पॉवर्टी स्ट्रिकन वहाँ की पॉपुलेशन थी, वहाँ के जो पेशेंट्स थे वो मर रहे थे. तो वो देखते हुए लोगों ने हाउस ऑफ डाइंग उसका नाम रखा गया. सो मैरी लाउडेन इज वन ऑफ द वॉलंटियर हु वर्कड एट मदर टेरेसा's मिशन ऑफ चैरिटीज हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स. So she exposed Mother Teresa. She wrote a book also. I'll send you the links in my Telegram channel on her research work. So she said that patients were not given painkillers and had to bear immense pain while injecting a patient, and needles were just washed with the tap water and was not even sterilized. अब सोचो, Mary Loudon was a person who, मतलब good intention is she went to help out these people. ठीक है, और जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे पेशेंट के साथ बहुत रफ डील किया जा रहा है, मतलब जब पेन हो रहा है तो अननेसेसरी पेन किलर भी नहीं दिया जा रहा है. वाई? बिकॉज पेन किलर इंजेक्शंस आर कॉस्टलियर. एक तो वो 7% फंड यूज़ कर रहे हैं, वो भी 7% फंड्स भी बहुत ज़्यादा है उनके पास, वो भी वो इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं. पेन किलर इंजेक्शन पेशेंट को नहीं देते थे, दे यूज्ड नॉट इवन गिव देम पेन किलर मेडिसिन. मतलब फिलोसफी बोल देते थे उस समय, बाइबल से वर्ड्स करते थे कि दिस सफरिंग इज किस ऑफ जीसस. जो ये सफरिंग है वो जीसस का किस है. ठीक है, यू बेयर दिस सफरिंग. बहुत सारे पेशेंट को ऐसे बोला जाता था, यू बेयर, यू टॉलरेट, द मोर यू टॉलरेट द मोर यू विल प्योरीफाई. इस तरीके से उन लोगों को बोला जाता था. दिस इज कम्प्लीटली रिडिकुलस. एंड अब आप ये जनरली देखो कि जब इंजेक्शन इंजेक्ट होता है, ठीक है, सो दैट नीडल इज चेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज चेंज. दूसरा ये कि उस नीडल को स्टेरलाइज, जब अगर कोई पुराना सिरिंज को पहले तो चेंज किया जाता है, उस ज़माने में क्या होता था कि वो नीडल्स को प्रॉपरली स्टरलाइज किया जाता था. द नीडल वॉज प्रॉपरली स्टरलाइज एंड इट वॉज स्टरलाइज इन अ हॉट बॉइलिंग वाटर. सो मैरी लाउडेन, उन्होंने पूछा जो मिशन ऑफ चैरिटी में जो नन्स काम कर रही थी कि आप लोग क्यों नहीं स्टरलाइज कर रहे हो, आप लोग नीडल्स चेंज क्यों नहीं कर रहे हो. ठीक है, सो उन्होंने कहा व्हाट डिफरेंस इज डज मेक. तो नन से वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे, वैसे भी लोग मर ही रहे और हमारा पर्पस ये नहीं है कि इन लोगों को बचाना, वी वॉन्ट देम टू सफ़र. मतलब इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था कि दीज आर सफरिंग पीपल, दे आर ऑलरेडी सफरिंग इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, लेट देम सफ़र. तो अब आप चाहते हो लोग सफ़र हो, तो आप क्यों सोशल ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो उन लोगों की हेल्प करने के लिए, व्हेन यू वांट पीपल टू सफ़र. नाउ दिस इज अनदर टेस्टिमोनी ऑफ हेमले गुंजालेस. ठीक है, सो हेमले गुंजालेस जो बताते हैं, वो एक शांति दान करके एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल था विच वॉज अगेन स्टार्टेड बाय मदर टेरेसा. सो हेमले गुंजालेस बता रहे थे कि he is narrating a story of a young nurse from London, an Indian nurse from London. She says that she witnessed patient being administered electroshock therapy as a way to punish them for the behavior if they were unruly. Obviously बात है कि मतलब कोई व्यक्ति अगर इतना पेन टॉलरेट कर रहा है, he is not able to tolerate pain and everything, so उस व्यक्ति के लिए नेचुरल होता है कि he will behave unruly. मतलब वो ऐसा बिहेव करेगा, he will not cooperate with you. मंगलवार को आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा. सो दैट हॉरर वॉज कम्प्लीटली इंस्टॉल इन देयर माइंड सेट. अगर वो दर्द भी हो रहा है, दे यूज्ड टू नॉट रिबल आउट ऑफ दैट फेयर कि हमें ये इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा. सो उसके कारण द पेशेंट यूज्ड टू बेयर. सेकेंड, अब जो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट था, हाँ, अब एमी जी अलेक्जेंडर, शी वॉज अनदर वॉलंटियर एट दया दान. इट वॉज अनदर organization, another clinic started by Mission of Charity and Mother Teresa. So it was basically a home run for people of special needs. अब वहाँ पे क्या था कि
किसी को फंड्स मिल गया तो फंड्स के साथ उन्होंने व्हील चेयर खरीदा जस्ट टू शो, कोई जेन्यून जो वो होते हैं डोनर्स होते हैं, दे वांट टू सी कि आपने फंड्स कहाँ यूटिलाइज करे, तो दिखाने के लिए बता देते कि हाँ वी हैव व्हील चेयर्स, वी हैव प्रॉपर बेड्स एंड एवरीथिंग, इन दिस हाउ वी आर टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट। उनको बीच बीच में क्लिप्स भेज देते थे, द एडिटेड क्लिप्स एंड एवरीथिंग, उनको बीच बीच में क्लिप्स भेज देते थे दिखाने के लिए कि हाँ ये हमारा फंक्शन चल रहा है, ठीक है। व्हील चेयर होता था, सब कुछ होता था, पर जो बच्चे थे दोज हु आर मेंटली और फिजिकली चैलेंज, दे वर स्टिल मेड टू क्रॉल, मतलब उनको कीड़ों की तरह एकदम क्रॉल करके अपना काम करना पड़ता था। मतलब व्हील चेयर है तो भी उनको व्हील चेयर फैसिलिटी नहीं दिया जाता था, व्हील चेयर वॉज जस्ट केप्ट असाइड, उनको जबरदस्ती क्रॉल कराया जाता था, ठीक है। और उनका ऐसा सिचुएशन था कि मतलब दे यूज्ड टू फॉल डाउन, क्रॉल करते करते मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू डाई, मोस्ट ऑफ देम यूज्ड टू like bear immense pain while they were crawling. Now obviously बात है, जिसका one person who has weak bones, who is not able to, who do not have strength on his or her knees and legs, वो व्यक्ति कैसा, how he will be able to cope up? ऐसे लोगों को व्हील चेयर नहीं दिया जाता था. These people were just left like a insect which was left to die. And standard of treatment, हाँ. सो मदर टेरेसा हाउस, अब क्या होता था कि जैसे आपने किसी को एक्सेप्ट करा, ठीक है, आपने किसी को अपने मिशन ऑफ चैरिटी हॉस्पिटल में बुलाया, सपोज मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन खोला, मैंने किसी को अडॉप्ट कर लिया. सो अडॉप्ट मीन्स यू ट्रीट दैट पर्सन एज योर ओन ब्लड. आप उसका प्रॉपर वेलबींग का नीड लोगे, फ्रॉम बेसिक नीड्स, फूड फैसिलिटी, शेल्टर, एवरीथिंग, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, प्रॉपर क्लोथिंग नीड्स एंड एवरीथिंग शुड बी फुलफिल्ड. दिस इज व्हाट intention mother mission of charity was formed. This is what intention Mother Teresa used to approach all the people to give funds to her and everything. पर ऐसा नहीं होता था. मिशन ऑफ चैरिटी में जो बच्चे थे, जो इनकी सब्सिडीज ऑर्गेनाइजेशन थे, उन लोगों के साथ उन लोगों को बहुत बेसिक नीड दिया जाता था. मतलब थोड़ा सा खाना दिया जाता था, दैट वाज आल्सो नॉट हाइजीनिक, ठीक है. थोड़ा सा क्लोथिंग नीड दिया जाता था. मतलब एज अ प्रिजनर, जैसे प्रिजनर को एक बेसिक नीड दिया जाता है जस्ट टू सर्वाइव एंड अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए एक बेसिक नीड दिया जाता है, वैसे ही उन बच्चों को या उन पेशेंट्स को दिया जाता था. अब आपके पास अब इतना फंड्स आ रहा था, उस फंड्स का अच्छे से यूज़ क्यों नहीं कर रहे? वाई दे डिड नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज इट इन अ गुड वे? व्हेन यू हैव सो मच फंड्स, व्हेन यू कैन मेक देयर लाइफ गुड, बट दे स्टिल डिड नॉट वांट इट. वाई? बिकॉज दे हैड द सेम आइडियोलॉजी एंड देयर मिशन वॉज टू डू कन्वर्जन एंड एवरीथिंग, नॉट टू हेल्प द पीपल. सो जब पूछते थे उनकी नन्स को या मदर टेरेसा को कि आप क्यों उन लोगों को ऐसा करते हो, वाई यू आर नॉट गिविंग देम अप टू द मार्क फैसिलिटीज, तो बोलते थे कि दिस इज अगेन किस ऑफ गॉड, द सफरिंग इज रेफर्ड एज किस ऑफ गॉड, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव देम गुड फैसिलिटीज, बिकॉज दे विल बी एबल टू सर्वाइव. ऐसी बेसिक नीड्स के साथ भी दे कैन सर्वाइव, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. दिस वॉज द स्टेटमेंट पास बाय दीज पीपल. अब पर जब मदर टेरेसा के खुद में आता था, व्हेन मदर टेरेसा फेल इल, जब वो खुद बीमार पड़ती थी, तो शी रेफर टू बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन इंडिया एंड अमेरिका. शी वेंट फॉर द ट्रीटमेंट ओवरसीज कंट्री टू गेट हरसेल्फ आउट ऑफ सफरिंग्स. मतलब खुद लोगों को बोलते थे कि दिस सफरिंग इज किस ऑफ जीसस, और पर खुद वो किस ऑफ जीसस लेना नहीं चाहती थी. This is how these people used to fool people in the name of social service, and they used to quote verses from Bible. हाँ. Now अब एक और इमेज था लोगों की, जो एक इमेज बना हुआ था लोगों के दिमाग में कि मदर टेरेसा was very much respectful to all the religion. मतलब she used to see a person as a human being, irrespective or his or her gender or caste or religion that person is coming from. ठीक है. तो people say the Mother Teresa used to treat Muslim, Christians, Hindus, Sikhs, Jains, Jews, everyone as same. She used to see each and every person as a proper human being. मतलब वो पीछे वो नहीं देखती थी कि इसके पीछे हिंदू का टैग है, मुसलमान का टैग है, या ईसाई का टैग है, या ज्यू का टैग है, या पारसी का टैग है. वो सिर्फ एक तरह से मतलब एज अ ह्यूमन देखते थे, ऐसा बताया जाता था. और लोगों को एग्जांपल दिया जाता था कि यू शुड सी पीपल लाइक मदर टेरेसा यूज्ड टू डू. अब मदर टेरेसा बोलती थी कि हर स्टेटमेंट वाज कि पीपल यूज्ड टू थिंक दैट शी यूज्ड टू वेरी रिस्पेक्टफुली डिस्पोज ऑफ द बॉडी. हर ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू वेरी रिस्पेक्टफुली डिस्पोज ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द रिलीजन दीज पीपल आर कमिंग फ्रॉम. सपोज कोई हिंदू पेशेंट मर गया अगर,
तो हिंदूज़ के जो प्रॉपर रिचुअल्स होता है बर्निंग ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, उस तरीके से इन पेशेंट्स को की बॉडी डिस्पोज की जाती थी, पर ऐसा नहीं था। तो इसमें जैसे मैंने पहले नाम बताया था हरमई गुंजालेस, so he gave his testimony. He said he was the only person who took this step and came forward to dispose of the bodies. तो उसने देखा, his exact statement was, I witnessed several times when baptism were being performed with dead Hindus right before they were put inside a cold room where they were kept until ready for crematory. तो आप सोच सकते हो, मतलब एक तो व्यक्ति मर गया है, he is just as the person is a complete dead body. उस डेड बॉडी को these people used to keep it in a place where they can store their body so that that body does not get rot, वो बॉडी सड़े ना, इसलिए उसको प्रॉपरली कोल्ड फ्रीजर में रेफ्रिजरेटर स्टोरेज में रखते थे जिससे बॉडी सड़े ना। और नेक्स्ट डे के लिए क्योंकि उसको बैप्टिज्म करना था उन लोगों को बिफोर डाइंग, सो दैट मे बी दीज पीपल कैन बी बी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन, मरने से पहले वो क्रिश्चियन बन जाए। This was the level of religious fanatism these people had in mind. मरते मरते व्यक्ति को बैप्टिज्म करते थे। बैप्टिज्म को मैंने मतलब बताया था, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। और वो अपने क्रिश्चियन वे से, द बाइबल वे, दे यूज्ड टू क्रिमेट बॉडीज। मतलब हम लोग भी टेररिस्ट को एक अच्छा तरीके से बॉडी को क्रिमेट करते या उनके घर वालों को दे देते हैं, पर ये लोग ऐसे थे कि पेशेंट को टेररिस्ट से बुरा ट्रीट करते थे। दे यूज्ड टू in many cases dispose of the body just like this in the waste when they used to see that they're falling out of space, कि बहुत मास डेथ होता था, बहुत ज़्यादा मास डेथ होता था। अनरिकॉर्डेड डेथ का फिगर है, इट इज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, क्योंकि इतना पावरफुल वैटिकन इकोसिस्टम बनाया था। द ब्यूरोक्रेट्स, द गवर्नमेंट, द पॉलिटिशियंस, the law enforcement agency, everyone was under them, so nothing could be recorded. But still, some people took a courageous step and came out and gave the testimony. Now, I'm near to the end of this discussion, so मैं थोड़ा सा आपको मतलब एक ऊपर से जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, आई जस्ट थ्रो सम लाइट whatever आई हैव डिस्कस्ड. फर्स्ट कि व्हाट पीपल थिंक कि मदर टेरेसा एक नोबल व्यक्ति थी, ठीक है. शी वॉज सेंट बाय जीसस टू हेल्प द डेस्टिट्यूट पीपल, टू हेल्प द पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल. ये लोगों का माइंडसेट था. ऐसा बिल्कुल नहीं था. मैंने बताया क्यों नहीं था, ठीक है. बिकॉज मदर टेरेसा ने अपने कोलकाता हेडक्वार्टर्स में क्लियरली बताया था, एंड शी हैज़ ऑल्सो हैंग्ड अ प्ले कार्ड विच क्लियरली सेड कि हम कोई सोशल वर्कर नहीं है ना, हम कोई टीचर है. वी आर जस्ट हेयर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ जीसस, टू स्प्रेड लव ऑफ जीसस, सो कॉल्ड लव ऑफ जीसस. हम यहाँ पे कोई सोशल वर्क करने नहीं आए. वी आर जस्ट हेयर टू, इनडायरेक्टली सी सेड, वी आर जस्ट हेयर टू कन्वर्ट यू पीपल. ये मदर टेरेसा का स्टेटमेंट है, बोल्ड स्टेटमेंट, एंड इट वॉज आउटसाइड हर हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता. सो दिस completely रिजेक्टेड. शी वॉज नॉट एट ऑल अ सोशल वर्कर. सेकेंड, जो एक गुड सोशल वर्कर होता है, सो दैट पर्सन इज मॉरली गुड ऑल्सो, दैट हर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मॉरली गुड. मॉरली गुड मीन्स आपको जो फंड्स आने चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम क्लीन सोर्सेज, फ्रॉम क्लीन बिजनेसमैन, फ्रॉम पीपल हु आर लॉफुली अर्निंग मनी विदाउट एक्सप्लॉइटिंग अनदर पीपल. वो मनी फिर ब्लड मनी की तरह हो गया. मतलब आप लोगों को खून का पैसा, एक जो लोगों के किसी का खून पसीने का पैसों को आप लूट के किसी को डोनेट करो, सो दैट इज ब्लड मनी, लिटरली ब्लड मनी. ब्लड मनी सिमिलरली लाइक जैसे आप देखिए कि जो ऑयल वॉर हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो द सेम मनी गोइंग टू ऑयल वॉर, द सेम मनी गोइंग टू द साउदी कंट्रीज, दीज मनी आर यूज फॉर फंडिंग टेररिज्म, एंड सेम मनी इज देन यूज फॉर किलिंग सोल्जर्स of our country and many good soldiers. So this is blood money. So similarly, Mother Teresa she utilized blood money for her mission. मैंने आपको example दिया that Francois Duvalier, the Haitian president who did mass exodus. Charles Keating का example लिया, the one of the most famous person in American fraud history. उन जैसे लोगों का support करा. फिर जब मैं थर्ड पॉइंट में आया, तो मैंने जब थर्ड थीम में आया, तो मैंने बोला कि हाउ मदर टेरेसा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी किया था. दे यूज्ड नॉट मेंटेन एनी बुक एंड एवरीथिंग, ठीक है. हर चीज़ उनका ऑफ रिकॉर्ड रहता था. एक रफ नोटबुक बनाई जाती थी लाइक वी यूज फॉर आर सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम. ओनली यूनाइटेड किंगडम में मदर टेरेसा ने प्रॉपर बुक मेंटेन करी थी बिकॉज देयर गवर्नमेंट वॉज स्ट्रिक्ट. पर इंडिया में बिल्कुल नहीं था. कोई रिकॉर्ड नहीं था उनके पास, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, किस पर्पज से यूज़ हो रहा है. नो रिकॉर्ड.
with the authorities. So there was no financial transparency. So obviously बात है, फाइनेंशियल ट्रांसफर नहीं होगा तो पता ही नहीं लगेगा कि कौन कौन लोग फंड दे रहे हो और कहाँ वो यूटिलाइज हो रहा है. फिर मैंने डिस्कस करा कि मदर टेरेसा का जो पैसा था, like 7% of the money used to be utilized for so-called social activities, social well-being, and 93% used to go to do missionary activities across the globe and to support the Vatican. ठीक है. Then I came on whatever social work she did in front of the world, उसमें भी कितना corruption था. ठीक है. The ill treatment of the patient, how they were treated like garbage, worse than animals. मतलब कुछ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उन लोगों का अच्छा ट्रीटमेंट करती है. मदर टेरेसा जिस हिसाब से करती थी, हाउ वेल ऑर्गेनाइज PR स्टंट शी रैन, दैट ऐसे ऐसे मूवमेंट से फोटो वीडियो कैप्चर करी जा रही है कि जब शी इज एक्टिंग कंपैशन टुवर्ड्स दोज पेशेंट एवरीथिंग. द सिचुएशन वॉज लाइक लिविंग हेल. द सिचुएशन इन हर मिशन ऑफ चैरिटी हॉस्पिटल वॉज लाइक कंप्लीटली लिविंग हेल. So this was the theme I discussed. Then I also discussed how these people used to handle dead bodies. मतलब मरते मरते व्यक्ति का बैप्टिज्म कर रहे हो, मरते मरते व्यक्ति का कन्वर्जन करते थे वो लोग. कोई डेड बॉडी है तो उस वर्ल्ड के सामने बोला जाता था कि वी सी पीपल एज अ पर्सन, एंड व्हेन वो जब मरते थे तो हम उसके धर्म के हिसाब से, जो धर्म में उसके प्रोसीजर है उसके हिसाब से हम उसको क्रिमेट करते थे. पर ऐसा कुछ नहीं होता था. रात को बॉडी को ओवरनाइट डीप फ्रीज में रखा जाता था सो दैट डिड नॉट गेट रॉट, और नेक्स्ट डे जब वो बॉडी को बाहर निकाला जाता था उसको बैप्टाइज किया जाता था. क्रिश्चियन कल्चर से उस बॉडी को क्रिमेट किया जाता, नॉट एज पर हिंदू like Hindus do or the Sikhs do or Jews do and everything. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किया जाता था. सो दे वर ट्रीटेड वर्स देन टेररिस्ट, द डेड बॉडीज. कोई डेड बॉडीज को बस ऐसे ही अनअटेंडेड फेंक दिया जाता था. मदर टेरेसा ने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी पास किया था, तो मैं अपना सेशन उस कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से पास करूँगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन बोलूँगा. सो ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने जो घोटाला करा था, बेसिकली आपको पता ही, जो आपने मूवी देखी होगी भोपाल गैस स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि कितने सारे लोग मरे गए थे वो गैस लीकेज से. तो मदर टेरेसा को तो पूछा गया कि व्हाट शुड, बहुत सारे लोग ने प्रोटेस्ट करा. द पीपल ऑफ भोपाल एंड मेनी पीपल अक्रॉस द कंट्री, दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड टू पुट प्रेशर ऑन दैट टाइम गवर्नमेंट कि उस मिनिस्टर को रिज़ाइन कराओ और उन लोगों को पकड़ो जो यूनियन कार्बाइड के ओनर थे. तो जो लोग एजिटेट कर रहे थे, तो मदर टेरेसा को पूछा, तो मदर टेरेसा ने बोला कि दीज पीपल शुड फॉरगिव. मतलब आप सोच सकते हो किसी व्यक्ति के छोटे छोटे बच्चे या उसके बीवी बच्चे तरस के मर गए, मतलब बहुत बुरी तरह बेरहमी से मरे थे वो उस फैक्ट्री के कारण, उस फैक्ट्री में गैस प्लांट के लीकेज के कारण. और मदर टेरेसा का व्यू पॉइंट है जस्ट फॉरगिव देम, जस्ट फॉरगिव दीज पीपल. दिस वॉज हर स्टेटमेंट. दिस वॉज मदर टेरेसा. दिस वॉज saintly figure which the Pope, which the Vatican considers. Second, मदर टेरेसा ने एक जर्नलिस्ट को बोला था कि this is the exact statement which she said to the journalist. There is something beautiful in seeing the poor accept their lot to suffer. It's like Christ's compassion. I think the world is being held by their suffering, and so she and her order let the poor suffer as a matter of principle. So मदर टेरेसा कहना ये था, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा था, कि सफरिंग is a kiss of Jesus. So Christ's passion, like it was, Christ's passion, the people are suffering. अरे आप अगर आपको कन्विक्शन है कि Christ wants people to suffer because they realize something according to the biblical false biblical theory, तो आप खुद क्यों नहीं सफ़र करते हो? Why you are giving yourself a good treatment, a good way of lifestyle? आप खुद भी सफ़र करो उनके साथ. अगर आपको उस फिलॉसफी में इतना कन्विक्शन है, फेथ है, आप औरों को क्यों सफ़र करने दे रहे हो? ऐसी कश्मीरी सेपरेटिस्ट का भी है. दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू गुड स्कूल्स एंड एवरीथिंग, बट जब लोकल कश्मीर की बात आती है तो उनको टेररिस्ट या पत्थरबाजी करने के लिए सुसाइड बॉम्बर्स की तरह भेज देते हैं. एंड मदर टेरेसा ऑल्सो सपोर्ट इमरजेंसी. उसमें बोला कि पीपल आर हैप्पियर इन इमरजेंसी, देयर आर मोर जॉब्स इन इमरजेंसी, और कोई स्ट्राइक नहीं है. सो दिस वॉज मदर टेरेसा फॉर यू गाइज. एंड I'll be, after finishing this session, I'll be posting the Telegram link of my channel, so you all can join this link, and I'll be putting on all the search sources from where I picked up this data. I'll be also writing an article on this in a few days time. So आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने साल तक, मतलब for the past 30 to 40 years we people are being fooled that a saint came to Kolkata.
सेंट वो 2016 में उनको मिला था उपाधि। पर कोई व्यक्ति आई थी मदर टेरेसा नाम की कोलकाता में, शी वॉज एल्बिनियन लेडी। कोलकाता आके उन्होंने ऐसा काम किया कि जो कोई नहीं कर पाया बेसिकली, ठीक है, जो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाया, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाया। तो ऐसा इमेज क्रिएट किया। उसके कारण क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी की तरफ लोगों का झुकाव बना, एंड पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग क्रिश्चियनिटी। वाई? बिकॉज दे सॉ मिशन ऑफ चैरिटी एंड मदर टेरेसा डूइंग गुड वर्क. They saw through the eyes of planted media personnel, or they saw through the eyes of the PR stunt run by the Vatican Church. So conclusion मेरा यही था कि धीरे धीरे करके ये सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं. लाइक बेबी सेलिंग रैकेट मिशन ऑफ चैरिटी का पकड़ा गया, सो गवर्नमेंट वॉज स्ट्रिक्ट डीलिंग विद देम. But still many people still consider them as noble people, as saintly people. So our purpose is only to our purpose is only to show that true face, true image, so that people are not trapped. गरीब लोगों का क्या कि जो उनको पहला हाथ बढ़ाएगा वो उनका हाथ पकड़ लेंगे. तो गलती उन लोगों की बिल्कुल नहीं है. इसमें गलती उन लोगों की है जिन लोगों को पता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का इल इंटेंशन है, तो भी उनको सपोर्ट करा जा रहा है, तो भी उनको प्रमोट करा जा रहा है. तो ऐसे लोगों की गलती है. जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिस व्यक्ति के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, मतलब ही और शी इज़ जस्ट ऑन डेड बेड, उस व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो जो उसके लिए पहला हाथ जाएगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा. तो ऐसी मदर टेरेसा ने करा. लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, तो जिसने पहला हाथ बढ़ाया, तो मदर टेरेसा ने जिसको पहला हाथ बढ़ाया, जो व्यक्ति को ज़रूरत थी उन लोगों को उन्होंने कैप्चर करा और जैसे अपने हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट करा. तो दिस वॉज मदर टेरेसा फॉर यू. एंड although we also have to help fellow Hindu people, जो गरीब हिंदू है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को हमको हेल्प करना चाहिए. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जिसके पास खाना पैसा कुछ नहीं है, वो कोई भी उनको खाना पैसा दे उसका हाथ पकड़ लेंगे. तो अगर हम लोग नहीं आएंगे, हम वो वैक्यूम फिल नहीं करेंगे, तो कोई ना कोई आके वैक्यूम फिल करेगा. और आपने देखा ही एंड रिजल्ट क्या होता है, उनका कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है, कितना पेनफुल डेथ होता है. स्टिल मेनी ऑर्गेनाइजेशन डूइंग इट, RSS इज डूइंग इट, ठीक है, रामकृष्ण मिशन, ISKCON, सदगुरु, मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव कम अप and they're doing very wonderful job. But we have to expand this mission so that we can reach out to most of the Hindus across the world and help them coming out of their destitute or poverty-stricken position. So thank you guys for joining this live discussion, and I'll be after this session I'll be putting on my Telegram channel link, Pen of Dharma's link, where tomorrow I'll be posting all the sources from where I was discussing the dark secrets of Mother Teresa's missionary. So you guys can join the Telegram link. You guys can join the Telegram channel through this link. Thank you.